کو سنیں اور سب کی تعلیم کو وقت پاک کے سامنے دعوت کریں۔ آئیں کھڑے کھڑے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، تمہاری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم الواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلب باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک عالم کی کلیسیا پر، مقدسوں کی حفاظت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ تشریف رکھیں۔ یسوع مسیح کے بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ خوش ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے۔ خداوند آپ کو صحت تندرستی دے، کیونکہ آج کل ڈینگی وائرس بہت ہی زیادہ پھیل رہا ہے۔ احتیاط کریں، کپڑوں کا دھیان رکھیں، شام کے وقت کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ نہ جائیں جیسے کہ پارک وغیرہ ہے، ان میں نہ جائیں، کیونکہ یہ بخار اگر ایک گھر میں آ جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں پوری فیملی جو ڈینگی وائرس کا شکار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس گھر کے ایک شخص کو ڈینگی وائرس ہو جائے گا، اس سے اگر عام مچھر بھی کاٹے گا تو وہ بھی ڈینگی بن جاتا ہے۔ کل میں ہاسپٹل میں گیا تھا کسی کا پتہ لینے، تو وہاں ایک وارڈ جو ہے وہ پوری ڈینگی کی بنا دی انہوں نے، اور سب مچھردانیوں میں لیتے ہیں۔ ہاتھ بھی انہوں نے بیچاروں نے ملانا تو تھوڑا سا ہاتھ نکال کے ہاتھ لاتے ہیں، وہ اپنا جسم کا کوئی حصہ باہر نہیں نکالتے۔ تو کل جس بھائی سے میری ملاقات ہوئی وہ مجھے کہہ رہا تھا جب میرا دل کرتا میں اس سے نکل جاؤں، باہر نکلوں، میں تنگ آ گئی اس کے اندر لیٹ کے۔ تو یہ وقت آنے سے پہلے احتیاط کریں تاکہ یہ وقت آئے نہ۔ آئیں خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے۔ آج میرے پاس وقت کم ہے، کوئی نے 10:30 بجے مجھے آج سٹیج دیا ہے، تھوڑے آگے ہو جائیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے کیا ہے، یاد ہے کسی کو نہیں؟ یوسف بادشاہ کی خواب کی تبدیل کرتا ہے۔ خدا یوسف کو بار بار یاد کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف خدا نہیں بھولا، باقی تمام لوگ شاید بھول گئے، تو اس کے بھائی بھی بھول گئے کہ ہم نے اپنے بھائی کو بیچا تھا، بھول گئے، وہ اس بات کو بھول گئے۔ پھر اس کے بعد 44 کو دیکھتے وہ بھی بھول گیا تھا اس کو قید خانہ میں ڈال کے۔ پھر جو ساتھی ہے جس نے خواب کی اس نے تعبیر بتائی وہ بھی بھول گیا، لیکن خدا نے اس کو یاد رکھا۔ پھر
वाकया हुआ और फिर खुदा ने उसको उस मनसब पे लेके गया जो उसके लिए रखा गया था। जो उसने ख्वाब देखे थे, उसने 2 ख्वाब देखे थे। याद में इसको बयान किया गया था कि उसने 2 ख्वाब देखे थे जिससे उसके भाई उसकी मुखालफत में खड़े हुए थे। और वही आज हम देखेंगे कि यहाँ पे आके खुदा ने उन ख्वाबों की तब्दील कर दी, उन ख्वाबों को पूरा किया जो उन्होंने पहले से देखे थे। आए निकाले मेरे साथ पैदाइश की किताब 41 बाब 41 बाब है। पहली ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ जी पढ़े। पूरे 2 वर्ष के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो पूरे 2 बरस के बाद क्या हुआ? वही ख्वाब। यहाँ पे 2 ख्वाब देखे जा रहे हैं। यूसुफ ने 2 ख्वाब देखे, उसके बाद फिर हम देखते 2 ख्वाब 2 शख्सों ने देखे एक ही रात में, और फिर उसके बाद फिरौन ने 2 ख्वाब देखे। 2 का अदद जो है, अगर बाइबल मुकद्दस के की रूह से देखा जाए तो ये किसका होगा? क्या ख्याल है? गवाही का है। ये गवाही का है, क्योंकि जब 2 ख्वाब देखे जाते हैं उसी वक्त गवाही कायम होती है। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 2 ख्वाब देखे जा रहे हैं, और बाइबल मुकद्दस की रूह से अगर देखें तो गवाही है। ये 2 का अदद जो है ये गवाही का अदद है। आए एक और हवाला जरा देखते हैं। 2 ख्वाब और भी कहीं देखे गए। निकाले में इसका जरा दानियल 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेके 7 आयत तक पढ़ेंगे। 912 नंबर पेज है। जल्दी जल्दी। यहां फरौन बादशाह जो है वो भी क्या करता है? 2 ख्वाब देखता है, और इसके ख्वाबों को देखेंगे क्या है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि 2 ख्वाब और भी देखेंगे जी। हाँ जी पहली आयत से। नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे, ऐसे ख्वाब उसने भी 2 ख्वाब देखे, लेकिन वहां पे जरा हालात चेंज थे। वहां पे नबूकदनेस्सर ख्वाब देखता है और बहुत सारे जादूगरों को, फालगिरों को पास बुलाता है और उनको कहता है कि मैंने जो ख्वाब देखे हैं वो मुझे बताओ। तबीर नहीं कहता, कहता ख्वाब भी आपने बताने हैं। वो कहते जी ख्वाब तो बता, कहता नहीं ख्वाब भी आप ही बताओ, मैं देखना चाहता हूं तुम कितने बड़े जादूगर हो, तुम कितने बड़े देवताओं को मानते हो, तुम कितने बड़े फालगीर हो, तुम मुझे बताओ कि मैंने ख्वाब क्या देखे हैं। वो कहते हैं बादशाह हमें ये बता ख्वाब क्या देखा। तबीर हम बताएंगे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। पढ़े जरा इसको। और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया, जिनसे उनका दिल घबरा गया। हाँ जी। और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसीदियों को बुलाओ कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। वो सबको बुला लेता है, जादूगरों को भी बुला लेता है, फालगिरों को भी बुला लेता है, नजूमियों को भी बुला लेता है, सबको बुलाता है और कहता है, बोल पड़ेगी आगे जरा, कि वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए। और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने एक ख्वाब देखा है जी। और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। उस ख्वाब की तब्दील सुनने के लिए मेरी जान जो है बेताब है जी। तब कदसियों ने बादशाह के हुजूर अरामी जुबान में अर्ज की कि ऐ बादशाह अब तक जीता रहे, अपने खात्मों से ख्वाब बयान करो। अपने खात्मों से क्या कर? ख्वाब तो बयान कर। लेकिन क्या कहता बादशाह? और हम उसकी ताबीर करेंगे जी। बादशाह ने कस्तियों को जवाब दिया कि मैं तो ये हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। मैं तुम्हें किस लिए पालता हूँ? उस वक्त के बादशाह जो थे वो नजूमियों को, जादूगरों को, इन सब को क्या करते थे? पालते थे, पैसे देते थे ताकि वो वक्त पड़े तो मुझे काम आए। लेकिन यहाँ पे
फालगिरों, नजूमियों, जादूगरों, तुम मेरे ख्वाब बताओ कि मैंने ख्वाब क्या देखा है। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है ये बताना। ख्वाब बता देना और बात है, उसकी तफसीर करना और बात होती है। लेकिन यहाँ उल्ट चल रहा है सारा कुछ। बादशाह कहता ख्वाब भी तुमने बताने हैं, मैंने हुक्म कर दिया है कि अगर तुमने मेरे ख्वाब ना बताए तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वहां पर भी खुदा काम करता है और डैनियल जाके उसके ख्वाब भी बताता है और उसकी तब्दील भी करता है, क्योंकि खुदा हर चीज को करने की ताकत रखता है। यहाँ पे हम देखते हैं वापस नए पैदाइश में कि यहाँ पर भी 2 ख्वाब देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बादशाह ख्वाब बताता है कि मैंने क्या ख्वाब देखे हैं, लेकिन वो तब्दील मांगता है कि मुझे तब्दील बताओ कि इस ख्वाबों की तब्दील क्या होने वाली है। ये ख्वाब मैंने क्या देखे हैं, पहले ख्वाब क्या देखे उसने जरा। 2 वर्ष के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर, ये उसने ख्वाब देखा था, ये ख्वाब उसने देखा और फिर दूसरा ख्वाब देखा कि पढ़े आगे। और मोटी मोटी गायें निकलकर नेस्तान में चलने लगी और उनके बाद और 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गांव के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई। और ये बदशक्ल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वो फिर सो गया और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक गिट्टी में अनाज की 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली और उनके बाद और 7 पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली। ये पतली बालें उन 7 मोटी और भरी हुई बालों को निगल गई और फिरौन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था और सबको यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब जादूगरों को और सब दानिशमंदों को दानिशमंदों को जितनों को वो पालता था सबको बुला लिया गया। यहाँ पर भी वही कुछ है, उन सबको क्या किया, बुलाया गया और उनको ख्वाब बताए गए कि ये मैंने ख्वाब देखे हैं, तुम इनकी क्या करो, तब्दील करो। लेकिन कोई जादूगर, कोई फालगिर, कोई नजूमी उन ख्वाबों की तब्दील ना कर सका। लेकिन वहां पे क्या हुआ जी, पढ़े आगे। और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उसकी ताबीर ना कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आई, मेरी खताएं आज मुझे क्या हुई हैं, याद आई। क्योंकि 2 साल पहले वो कैद में था और वो यूसुफ के साथ वादा भी करके गया था। यूसुफ ने उससे वादा लिया था कि जब तू अपने मकसद पर आ जाएगा तो मुझे क्या करना, भूल ना जाना, मुझे भी याद करना। यहाँ यूसुफ को जब आप देखते हैं तो तकरीबन 13 साल हो चुके थे उसको। 13 साल से वो दरबदर था। उसके भाइयों ने 13 साल पहले उसको बेचा था और वो सफर करता करता फिरौन के पास पहुंचा, लेकिन वो खुदा के साथ ही रहा। खुदा भी उसको याद करता रहा, गाहिब गाहिब उसको बताता रहा कि मैं तेरे साथ हूं। आज भी खुदा हमारे साथ रहता है, लेकिन आज वक्त ये है कि हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता खुदा के साथ चले और अगर हमारे काम ना हो, हम कहते खुदा ने हमारा काम करना ही नहीं है, खुदा भूल गया है। हम ये बातें करते हैं, लेकिन यूसुफ को देखते हैं कि 13 साल हो चुके हैं। वो बियाबान में भी रहा, वो कैद में रहा, वो बार बार में कैद में डाला जा रहा था और 2 साल हो गए थे तो वो जेल में बंद था। लेकिन वो खुदा को नहीं भूला और ना ही खुदा उसको भूला। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी इस चीज को लें, हम भी जल्दबाजी ना करें। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं, खासकर वो लोग जिन पर मुश्किलात आती, परेशानी आती है, खासकर वो जोड़े जिनके औलाद नहीं है, वो बहुत जल्दबाजी कर, जल्दी जल्दी नहीं तो चलो फिर जादूगरों को चले जाए। लेकिन यहाँ पे जादूगर, फालगिर सारे के सारे क्या हो रहे, फेल हो रहे, फेल हो रहे। पढ़े आगे। जब फिरौन अपने ख्वाबों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नागपस को जमींदारों के सरदार के घर में नजर बंद करवा दिया, तो मैंने और उसने एक ही रात में एक ही ख्वाब देखा। वो कहता मेरी खता माफ कर दे। मैं 2 साल पहले जब कैद में था,
میں نے خواب دیکھا تھا اور نعمان پذیر نے بھی ایک خواب دیکھا تھا, ہم نے دونوں نے خواب دیکھے, اور وہاں ایک عبرانی ہے جس نے ہمارے خوابوں کی تعبیر کی. اس نے میرے خواب کی تعبیر کی. میرے منصب پر میں دوبارہ سے سرفراز ہوا اور دوسرے کو پھانسی دے دی گئی. بادشاہ کہتا ہے جلدی سے یوسف کو میرے پاس لے کے آؤ. اور جب یوسف کو اس کے پاس لایا جاتا ہے, یوسف کا بارے میں لکھا ہے کہ اس سے اس کی شیب کروائی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ قید خانے میں وہ بدحال ہو چکا تھا, لیکن پھر بھی خدا نے اس کو یاد رکھا, اور نہ وہ خدا کو بھولا تھا نہ خدا اس کو بھولا تھا. آج جیسے مرضی حالات ہوں, خدا ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ وفاداری دکھائیں. جیسے بھی حالات ہوں ہم خدا سے پیچھے نہ ہٹے. جب خدا سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو کوئی ایسا جادوگر, کوئی ایسا فالگیر, کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کو بچا سکے. واحد ایک خدا ہے جو آپ کو ہر مشکل پریشانی سے نکال سکتا ہے. یہ پڑھیں. یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے. وہاں ایک عبرانی جوان جلداروں کے سرداروں کا نوکر ہمارے ساتھ تھا. ہم نے اسے یہ خواب بتایا اور اس نے ان کی تعبیر کی. اس نے ان کی کیا کی؟ تعبیر بتائی. اب بادشاہ کے سامنے اس کو بلایا جاتا ہے اور بادشاہ فوری طور پر کیا کرتا ہے؟ اس کو بلاتا ہے اور وہ اپنے خواب اس کو بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھے ہیں. اور یوسف کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرا خدا جانتا ہے. یہ دوسری بار وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. پہلے بھی جیل میں بھی اس نے یہی کہا کہ جب تک میں کچھ نہیں ہوں, لیکن میرا خدا ہے جو خوابوں کی تعبیر کرنا جانتا ہے. خدا بڑا ہے, وہ اپنے آپ کو آگے نہیں کرتا. یہاں پر بھی وہ یہی بات کرتا ہے. یہی عاجزی خدا کو پسند آئی اور خدا نے اس کو اتنے بڑے منصب پہ سرفراز کر دیا. وہ بادشاہ بن گیا. فرعون کے بعد جو بادشاہ تھا وہ یوسف تھا. جہاں دیکھتے 45 سال پہ, تھوڑا اس کو شارٹ کریں گے کیونکہ ٹائم کم ہے میرے پاس. ہاں جی 45 سال پڑھنے ذرا سے. اسی کی 45. یہاں یوسف کا نام بدلتا ہے. بادشاہ جیسے ہی یوسف اس کے پاس آتا ہے, بادشاہ کو جب وہ اپنی خواب بتاتا ہے, بادشاہ اس کو خواب بتاتا ہے, وہ ان کی تعبیر کرتا ہے, تو بادشاہ اب سب لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کیونکہ یوسف ان کو مشورہ دیتا ہے کہ تیری خوابوں کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال تک اتنی زیادہ پیداوار ہوگی, اتنا زیادہ تیرے ملک میں اناج پیدا ہوگا. اگر کوئی سنبھالنے والا ہو تو اس کو سنبھال لے, کیونکہ اس کے بعد جو تو نے دبلی گائیں دیکھی ہیں, جو دبلی بالیں دیکھی ہیں, وہ کو کھا گئی ہیں, موٹی تازہ گائیوں کو کھا گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے تیرے ملک میں بہت زیادہ اناج پیدا ہوگا, لیکن پچھلے سال جو باقی 7 سال ہے اس میں اتنا قحط نازل ہوگا کہ تیرے ملک میں اناج ختم ہونے والا ہو جائے گا. وہ کال کے ساتھ سال ہوں گے. اس لیے جو 7 سال تیری پیداوار کے ہیں ان دنوں میں ایسا بندہ ٹھہرا جو وہ 7 سالوں کی جو بیج ہے ان کو جمع کر لے, اناج جمع کر لے, تاکہ جو 7 سال کال کے ہیں ان میں آپ لوگ کھا سکو. بادشاہ اس کی خواب کی تعبیر سنتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی شخص مجھے نہیں مل سکتا, کیونکہ حالانکہ وہ عبرانی تھا, وہ مصری نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بادشاہ اس کو مقرر کرتا ہے کہ مشورہ کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو مقرر کرتا ہے کہ آج کے بعد صرف میرا گھر اور میرا بادشاہ بزرگ ہوں, لیکن سارا کچھ باقی تیرے اندر آ جائے گا. آج کے بعد تو جو حکم دے گا ملک میں وہی کہا جائے گا, جو تو کہہ دے گا وہ ہوگا. جہاں تو جس کو قید کر دے وہ قید, یہ اس کو پورا اختیار دے دیا جاتا ہے. لیکن یہاں سوچنے والی بات ہے کہ ایک مصری غیر قوم کو, عبرانی کو کیوں اس نے بادشاہ بنا دیا, کیوں اس نے سیکنڈ بادشاہ بنا دیا؟ وہ تو خود بادشاہ تھا, وہ اپنے اس جگہ سے بھی کسی بندے کو لے سکتا تھا, لیکن وہ یوسف کو چنتا ہے اور یوسف کو بادشاہ
बना देता है, उसको कहता है कि बाद तू पूरे मुल्क पर क्या है, हाकिम है, क्योंकि तेरे जैसा समझदार मुझे कोई और नजर नहीं आता जिसने मेरे ख्वाबों की तफसीर बता दी। लेकिन ये काम कैसे हो गया, बादशाह कैसे ये सारा कुछ कर गया? आए एक हवाला देखते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि बादशाह का दिल जो है वो खुदा के हाथ में है। हाँ जी, निकाल ले मिसाल की किताब 21 बार और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे, 692 नंबर पेज है। मिसाल 21 बार पहली आयत। बादशाह का दिल खुदावंद के बादशाह का हाथ किसके हाथ, दिल में किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में है। बादशाह का दिल जो है वो खुदा के हाथ में है और वो जिधर उसको चाहता है उसको फेर लेता है। इसलिए फराउन का दिल जो है वो खुदा के हाथ में था, इसलिए उसने उसको थमा दिया कि एक अबरानी को तू क्या कर, बादशाह मुकर्रर कर। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के कलाम के मुताबिक ये सारा कुछ हो रहा था। बादशाह का दिल किसके हाथ में है? खुदावन के हाथ में। पढ़ दें इसको पूरी को। बादशाह का दिल खुदावंद के हाथ में है, वो उसको पानी के नालों की तरह जिधर चाहता है उसको फेर लेता है। वहां फराओन के दिल को खुदावन ने क्या किया? फेर के रख दिया। खुदावन ने उसके दिल को फेर दिया और कहा कि यूसुफ से बड़ा कोई समझदार बंदा नहीं तुझे मिलेगा, इसलिए तू क्या कर, इसको मुकर्रर कर। क्योंकि यूसुफ ने ख्वाब देखे थे और ख्वाबों ने उसने देखा था कि मैं बादशाह बनूंगा, और यहाँ पे खुदा उसको बादशाह बना देता है, उसके मनसब उसको फाइज करता है, उसको उस जगह पे पहुंचा देता है जो उसने ख्वाब देखे थे। 13 साल पहले उसने ये ख्वाब देखे और अब खुदा की तब्दील कर रहा है। कि आज हम इंतजार करते हैं कि हमारे ख्वाब की, हमारी रोया की, हमारी दुआ का इंतजार करते हैं कि खुदा कब जवाब देगा। आज तो हमें जल्दबाजी बड़ी है, हम तो रात को दुआ करे तो कोशिश करते रातों रात ही खुदा की तब्दील कर दे, पूरा कर दे दूं। लेकिन ये हमें पढ़ने वाली बातें हैं, सीखने वाली बातें हैं कि यूसुफ 13 साल तक इसी हाल में रहा, लेकिन 13 साल के बाद खुदावन ने उसको उस जगह पे पहुंचा दिया जो उसने 13 साल पहले आप देखे थे। हाँ जी, आप जरा पढ़ें इसकी 45 आयत, शॉर्ट करेंगे इसको। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सिफनात फनाहे रखा। क्या रखा जी? सफनात नाहे रखा, उसका नाम चेंज कर दिया। इस नाम का मतलब जो है, कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका नाम जो है नजात, दुनिया का नजात दहता। कुछ लोगों का ख्याल है कि यूसुफ का नाम इसलिए चेंज कर दिया गया कि वो दुनिया का नजात दहता बना, क्योंकि वो पूरी दुनिया में जब काल पड़ गया, जब अनाज नहीं मिलता था, तो यूसुफ बहुत वो जरिया था कि वो लोगों को अनाज देता था। और फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका मतलब है खुदा कलाम करता है और वो जिंदा है। और मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा पावरफुल बात है कि खुदा कलाम करता है, क्योंकि खुदा कलाम कर रहा था ख्वाबों के वसीला से। उसने ख्वाब में यूसुफ से बात की और फिर उसके बाद उसने नातज़ीर और साकी को आगाह किया, फिर फराओन को आगाह किया और फिर खुदा ने कलाम को पूरा कर दिया। यहाँ देखते हैं कि उसका मतलब जो है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये खुदा कलाम करता है और वो जिंदा खुदा है, क्योंकि यूसुफ ने 2 बार ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए। और फिर 50 आयत इसकी बात में, और काल से पहले ऊन के पुजारी फतुफुरा की बेटी आसनात के यूसुफ से 2 बेटे पैदा हुए। अब ये एक जादूगर की बेटी थी जिसके साथ यूसुफ की शादी कर दी थी। हालांकि यूसुफ खुदा के साथ चलता था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा, क्योंकि बादशाह ने उसको सेकंड बादशाह बनाया था, इसलिए वो बादशाह की किसी बात का जवाब देना नहीं चाहता था। और फिर उसमें से उसके 2 बेटे पैदा हुए। जी पढ़े। और यूसुफ ने पहलोठे का नाम मनस्से ये कहकर रखा कि खुदा ने मेरी और मेरे बाप के घर की सब मुशक्कत मुझसे भुला दी,
मनस्सी रखा। पहले का नाम उसने क्या रखा? मनस्सी। इसका मतलब है भुला देने वाला। मनस्सी का मतलब है भुला देने वाला। मनस्सी उसने कहा कि आज जितनी मैंने मुश्किलें सही 13 साल में, वो सारी की सारी मैं भूल चुका हूं। जब खुदा ने उसको मनसब में फाइज किया, आज भी मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं, जब मुश्किलात में पड़े होते, परेशानियों में पड़े होते हैं, हालात खराब होते, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, तो मैं कहता हूं कि एक वक्त आएगा कि खुदा आपको सरफराज करेगा और आपने पीछे वाला सारा कुछ भूल जाना, मैनू भी भूल जाना है। यही कुछ होता है। फिर मुझे भी भूल जाते लोग कि किसने दुआ की, किसकी दुआओं से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पे यूसुफ जो है वो अपने बेटे का नाम मनस्सी रखता है, जिसका मतलब है भुला देने वाला। उसने कहा जो कुछ मेरे साथ हुआ 13 सालों में, मैं कैद में रहा, मेरे भाइयों ने मुझे बेचा, मुझे पोतीफर की बीवी ने, उसने ज़ुलेखा ने मुझ पे बड़ा इल्जाम लगाया और मैं कैद खाना में रहा, लेकिन उसके बावजूद ये सारी ज्यादतियां मैं क्या कर देता हूँ? भुला देता हूँ। वो अपने बेटे का नाम मनस्सी रख देता है। और दूसरे का नाम क्या रखा? और दूसरे का नाम इफ्राइम, ये दूसरे का नाम इब्राहिम रखा, यानी के फलदार, क्योंकि खुदा ने वहां पे उसको सरफराज किया और बहुत सारा फल नजर आता है कि यूसुफ की जिंदगी में बहुत सारा फल। उसके अपने जो भाई हैं, आगे जाके देखेंगे, वो भी आके उसके आगे सजदे करते थे। उसका बाप भी उसके आगे सजदा करता था, क्योंकि उसने 13 साल पहले ये ख्वाब देखा था। आज हमें जरूरत है कि हम भी यूसुफ की तरह ठंडे हो जाएं। मुश्किलात, परेशानियां आती हैं, लेकिन खुदा अगर 13 साल में उसको याद कर सकता है तो हमें क्यों नहीं? हमें तो इतनी देर नहीं लगती। ये ज़हन में रखें, हम बड़ी मुश्किल काटें तो 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने, साल लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आखिर खुदा, क्योंकि खुदा हमारी सकत को देखता है। हमारे अंदर यूसुफ जैसी सकत नहीं है। यूसुफ के अंदर बड़ी सकत थी। उसके भाइयों ने बेचा, वो चलता हुआ मिस्र में पहुंचा, कैद खाने में रहा, 2 बार उसको कैद किया गया, लेकिन उसके बावजूद उसमें इतनी सकत थी कि वो खुदा के साथ वफादार रहा। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी याद रखें और वफादारी दिखाएं, ताकि खुदा आपको भी यूसुफ की तरह सरफराज कर दे। खुदा सरफराज करना जानता है, लेकिन अगर हम खुदा के साथ वफादारी दिखाएंगे। आए खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। आए अपने सर को दिखाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी क्या नहीं कर सकता है। भाइयों से मैं चाहता हूँ कोई दुआ में रह रही है।